हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सो आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। चलो, तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इन शॉर्ट 3D ज्योमेट्री। तो JEE मेंस की बात करें तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, और वेक्टर्स एंड 3D दे आर बेसिकली रिलेटेड। अगर वेक्टर आ रहा है तो 3D आएगा, 3D आ रहा है तो वेक्टर्स आएगा। दोनों में लगभग सेम कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि चैप्टर थोड़ा सिंपल है। और अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो एनसीईआरटी ने सिलेबस और कम कर दिया है, ठीक है। JEE का जो एनटीए ने अभी सिलेबस रिलीज किया है फॉर दिस ईयर 2024, उसमें सिलेबस और रिड्यूस कर दिया है। तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है तो चीज़ें क्या हो गई, कंटेंट थोड़ा कम हो गया। बट इट डजेंट मीन कि आपने को कम पढ़ना है, नहीं नहीं, ठीक है। लेवल ऑफ द क्वेश्चन दैट माइट बी इंक्रीज्ड। वाई? बिकॉज ये कंपटीशन इतना है ना, अगर उनको सिलेक्ट करना है तो फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि लेट द लाइन x minus 2/3 and y minus 1 divided by minus 5 equals to z plus 2 divided by 2 lie in the plane. This line lie in the plane, this plane. Okay, so it is saying ki we have a plane and a line. This line, it is lying in that plane, and the equation of the plane is that is x plus 3y minus alpha times z plus beta equals to 0. Okay, can anyone from the equation of plane, can anyone tell me the normal of the plane? No, normal of the plane. So normal of the plane is going to be normal of plane is going to be the coefficient of x, that is 1, y that is 3, and coefficient of z is minus alpha. This becomes the normal of the plane. So as we know कि normal of any plane is going to be perpendicular to the plane. So if it is perpendicular to the plane, so just think about this line which is given by this equation, and this perpendicular line which is the normal of the plane. Are they perpendicular, yes or no? So I think they are perpendicular, and dr of the line, direction ratio of the line is going to be, dr of the lines is going to be 3 comma minus 5 comma 2. So if they are the perpendicular, this line and this line, and this is vertical line, normal of the plane, they are perpendicular. So it means कि their dot product is going to be 0. Their dot product is going to be 0. Let it call it D. So I know कि n dot D, vector n dot D, that is going to be 0. So let's dot product, so 3 is going to multiply 1, so that is going to be 3, and minus 5 into 3, that is minus 15, and 2 into minus alpha means minus twice alpha. It should be equals to 0. In dot product, two perpendicular vectors are going to be 0. So from here I can see कि twice alpha equals to minus 12. तो alpha is going to be minus 6. Alpha becomes minus 6. चलो, तो सर एक तो आंसर आ गया। सेकेंड थिंग, so I know कि this line lie in the plane. If this line lie in the plane, so I know कि if this is the equation of the line, so this represents the direction ratio of the line, and this represents the points on the line. So it means कि x equals to 2 comma 1 comma minus 2, it will also lie on the plane, और लाइन पे लाई करता है तो प्लेन पे लाई करेगा। और अगर प्लेन पे लाई कर रहा है तो फिर इट मीन्स कि इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इसका मतलब इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो इफ इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और वैसे भी मुझे दिख गया है यार ना कि -6 तो बस इसमें आ रहा है फर्स्ट में ना, ऑप्शन से भी हेल्प मिल जाता है। तो -6 फर्स्ट में आ रहा है तो आई विल मेक श्योर कि बस ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे, बिकॉज एक ही तो आंसर करेक्ट होगा और हम लोग इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अगर ए प्लेन पे लाई कर रहा है तो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो इन प्लेस ऑफ एक्स आई विल पुट 2 plus 3 into 1, and minus alpha means -6, so minus plus 6, and z means -2.
plus beta equals to 0. So I think it is going to be 2 plus 3 and minus 12 plus beta equals to 0. So I think beta is going to be equals to 7. Beta equals to 7. 12 minus 5 उस साइड लेके गया, 12 minus 5 7. तो ऑप्शन फर्स्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. ऐसे भी देख ले. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो अ लाइन ए बी इन 3 डायमेंशनल line AB in 3-dimensional space makes an angle 45 degree and 120 degree with positive x-axis and positive y-axis respectively. If AB makes an acute angle theta with the positive z-axis, then theta equals to. Okay, so I think we know a relation between the angles angle made by any vector line, any 3-dimensional line on the x-axis with the y-axis and with the z-axis. If angle made on the x-axis are alpha, angle made by line on the y-axis is beta, and angle made by the line on z-axis is gamma, then we know the relation alpha cos square alpha plus cos square beta प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू ना. ये रिलेशन हमको पता है, तो अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दे. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ अल्फा इज 45 डिग्री, सो इट इज गोइंग टू बी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस वैल्यू ऑफ बीटा इज कॉस स्क्वायर ना विथ वाई पॉजिटिव आई एक्सिस, दैट इज 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा. वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गामा इक्वल्स टू. तो cos square 45 degree means cos 45 degree is 1 by root 2, so it is going to be whole square, and cos 120 degree is going to be 180 minus 60, and it is in second quadrant, so it is going to be negative, and cos 60 degree is minus 1 by 2, cos 120 minus 1 by 2 plus cos square gamma equals to. So I think cos square gamma is going to be 1 minus, now this is going to be 1 by 2 and plus 1 by 4. So I think when we'll subtract, so we'll get 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, so 1 by 2 minus 1 by 4 is 1 by 4. वैसे भी LCM लेके देख लेना, 1 by 4 आएगा. तो cos square gamma becomes 1 by 4, and we will have the value of cos gamma two values. One is going to be 1 by 2 and second is going to be minus 1 by 2. But in the question it has already mentioned the theta, it is the acute angle, we'll get the two values. If I take minus 1 by 2, it is going to be 120 degree, और 1 by 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री. तो out of those two which angle is acute, तो I think 60 degree is acute angle, so option 3 is going to be the right answer, correct answer. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. हो ला 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 दिल. The length of the perpendicular drawn from the point on the line, the length of the perpendicular drawn from the point on the line, कोई लाइन और the length of the perpendicular drawn from the point on the line, ना ये कोई लाइन पॉइंट है 3, -1, 11, and from this point we have drawn a perpendicular on this line. अरे हो रहा है नहीं हो रहा. चलो this point is 3, -1, 11, and this line is going to be x by 2. It means कि इस dr direction ratio is going to be 2, 3, 4, और the point on the line ना anywhere point on the line is going to be 0, 2, 3, ऊपर वाला x minus x1 अपॉन a इक्वल्स टू y minus y1, तो ये सारे क्या देते हैं पॉइंट्स देते हैं ऑन द लाइन. ओके
तो we basically need to this find out this perpendicular distance. So perpendicular distance of the line, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ. ओके, तो आई थिंक दिस डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट, this distance we can find out, but we need to find out this distance. So if I take it equals to lambda any variable point, so any variable point on the line is going to be that is going to be x coordinate is going to be 2 lambda, and the y coordinate is going to be 3 lambda plus 2, 3 lambda plus 2, and z coordinate is going to be 4 lambda plus 3. I assume this is perpendicular just up, we have this point on the line. So if this point is on the line, one thing I can do ki I can assume this point as A and this point as B, this point A and this point as a B. और सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं सर, सेकेंड थिंग हम लोग ए कर सकते हैं, ठीक है. सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं कि एक काम कर लो, इन दोनों के बीच का इन दोनों ए वाला वेक्टर फाइंड आउट कर लो, ठीक है. ए वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमको पता है कि दिस इज द डी आर ऑफ द लाइन, और ए जो लाइन होगा इसका जो वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, तो ए क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा. एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर तो हम लोग क्या कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, और डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना. चलो इस वेक्टर्स के बारे में करते हैं. तो इस वेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी 2 लेमडा माइनस 3 ना एक्स कोऑर्डिनेट, एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो इट इज गोइंग टू बी 3 लेमडा प्लस 3, एंड 4 लेमडा प्लस 3 माइनस 11 मीन्स 4 लेमडा माइनस 8, ठीक है. और दे आर परपेंडिकुलर, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया भाई 2, 3, 4. और जैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इट शुड बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर. तो इट इज गोइंग टू बी 2 2 ज़ा 4 लेमडा माइनस 6, एंड प्लस 3 3 ज़ा 9 लेमडा प्लस 9, एंड प्लस 4 4 ज़ा 16 लेमडा माइनस 32 इक्वल्स टू 0, 32 इक्वल्स टू 0. चलो, तो अब यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. अच्छा, एक काम और कर सकते थे ना, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं तो एंगल मिल जाता, उसके बाद इसका कॉस ले लेते, ठीक है, कॉस या साइन जो भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं. तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक कि 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस 16 लेमडा. तो 16 प्लस 9 इज गोइंग टू बी आई थिंक कि 25, एंड 25 प्लस 4 इज गोइंग टू बी 29 टाइम्स लेमडा. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 6 प्लस 9 इज गोइंग टू बी प्लस 3, एंड माइनस 32 आई थिंक कि माइनस 29 इक्वल्स टू 0. यहाँ से लेमडा की वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से बना गया, ठीक है. और जैसे लेमडा की वैल्यू बना गई तो आई थिंक कि ए पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 2, 3 प्लस 2 5, और ए क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज 7. तो अब मुझे लग रहा है यार कि डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा. तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला 2 माइनस 3 इज 1 माइनस 1, और माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस 5 माइनस माइनस 1 इज गोइंग टू बी प्लस 1, सो 5 प्लस 6, 5 प्लस 1 6, 6 होल स्क्वायर अगेन प्लस 7 minus 11 is minus 4, and minus 4 square I think कि plus 4 square they would be same. So it is going to be 1 square that is 1, and 6 square is 36, and 4 square that is 16. So I think we should add no 12, and 12 plus 1 13 का 3 ना carry 1, और 1 हुआ तो 1 1 plus 2 2 plus 3 5. तो आंसर शुड बी रूट 53. इज देयर एनी ऑप्शन रूट 53? तो आई थिंक ऑप्शन 1 ना, ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. चलो 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 मितवा ओहो 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 आर राजकुमार उसमें बोलता रहता है ना ओहो. चलो ठीक है. Question number 4. So the distance of the point 1 comma minus 5 comma 9 from the plane x minus y plus z equals to 5 measured along a straight line. चलो एक कोई straight line. The distance of the point from the plane
कोई पहले प्लेन बना लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया वी हैव अ प्लेन। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सपोज वी हैव अ पॉइंट 1, -5, 9, and we need to measure it along the line, not perpendicular distance. It should be along a line, somewhere, suppose here, along the line, and the equation of this line is x upon 1. So can I write down this as x upon 0 upon 1? Similarly y minus 0 upon 1, and similarly z minus 0 upon 1. सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि हम लोग ना वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन एज्यूम कर सकते हैं। तो कैसे एज्यूम कर सकते हैं सर? बहुत ही सिंपल है, इक्वल्स टू लेमडा है ना, हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो x भी क्या हो गया? लेमडा हो गया, y भी लेमडा हो गया, और z भी लेमडा हो गया। चलो, तो इट मीन्स, अच्छा ना, ये जरूरी नहीं पॉइंट होगा ना। चलो ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियो ना, लाइन का dr कितना हो गया? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन dr इज गोइंग टू बी 1,1,1। अच्छा, can I find out the equation of line whose dr is this and it is passing through this? ना, of course we can find out. अच्छा, इस प्लेन की ना, प्लेन का इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x minus y and plus z equals to 5. तो can I write down the equation of line which is passing through this point and whose dr is given? Of course the equation of that line is going to be, लाइन क्या हो जाएगा? 1, -5, 9 प्लस लेमडा टाइम्स dr, दैट इज 1,1,1। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, तो अब कोई वेरिएबल पॉइंट लेना हो लाइन पे ना, जो यहाँ पे हो, तो आई थिंक कि वेरिएबल पॉइंट इज गोइंग टू बी ना दिस पॉइंट कोई भी वेरिएबल पॉइंट, दैट इज गोइंग टू बी 1 and plus lambda ना x coordinate, and y coordinate is going to be -5 plus lambda, and z coordinate is going to be 9 plus lambda। तो आई थिंक कि अगर इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट ले लिया तो एक क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट इज आल्सो लाइंग ऑन द प्लेन। इफ दिस पॉइंट इज आल्सो लाइंग ऑन द प्लेन, सो इट मींस कि इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट किस पे है? प्लेन पे है। ठीक है, तो अगर ये प्लेन पे है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 प्लस लेमडा। एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1 प्लस लेमडा। एंड सिमिलरली माइनस, और वाई के प्लेस पे -5 प्लस लेमडा। ओके, एंड प्लस जेड मीन्स 9 प्लस लेमडा, और इट इज गोइंग टू इक्वल्स टू 5। अब इससे लेमडा की वैल्यू देखो बहुत आराम से आ जाएगी। तो इट इज गोइंग टू 1 प्लस लेमडा प्लस 5 माइनस लेमडा प्लस 9 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 5। तो आई थिंक कि 5 एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस लेमडा प्लस लेमडा, तो वैल्यू ऑफ लेमडा इज गोइंग टू बी -10। वैल्यू ऑफ लेमडा बिकम्स -10। 9 प्लस 1 10, और उस साइड ले गए तो -10। तो इफ वैल्यू ऑफ लेमडा बिकम्स -10, तो आई थिंक वी गेट द पॉइंट, वी गेट द पॉइंट। सो दिस पॉइंट, दिस वेरिएबल पॉइंट ना विच वी हैड इनिशियली अज्यूम, तो आई थिंक कि दिस इज गोइंग टू बी 1 - 10 इज गोइंग टू बी -9। एक क्या हो जाएगा? -9, एंड -5 - 10 इज गोइंग टू बी -15, और ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा? -10 प्लस 9 इज गोइंग टू बी -1। तो यार अब आई थिंक कि बहुत ही इजी हो गया ना, तो ए पॉइंट मिल गया, और तो हम लोग बस सीधा डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा आंसर? 1 माइनस -9 इज गोइंग टू बी +9, 1 + 9 इज गोइंग टू 10। तो एक क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर प्लस -5 एंड माइनस माइनस प्लस 15, -5 + 15 इज गोइंग टू बी -10, और -10 का स्क्वायर फिर से 100 आएगा, और ऐसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 9 माइनस माइनस प्लस 1, तो आई थिंक 10 स्क्वायर है ना। तो आंसर आई थिंक कि बहुत ही सिंपल है, 10√3 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर शुड बी 10√3। इज देयर एनी ऑप्शन 10√3? आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 10√3। तो ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ हो ला 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 शर्की
An equation of a plane parallel to the plane and unit distance from the origin. So equation of any plane विच इज पैरेलल टू अ प्लेन, तो आई थिंक कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या सर? क्योंकि उसका उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा सेम होगा एज दिस प्लेन, तो आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन एज सेम, बट उसका कांस्टेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या राइट डाउन कर सकते हैं? दैट इज गोइंग टू बी सेम एज x माइनस 2y प्लस 2z एंड इक्वल्स टू k बिकॉज वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इस प्लेन के पैरेलल इक्वेशन ऑफ द प्लेन वी हैव रिटन इट डाउन। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दिस प्लेन which is at unit distance from the origin, unit distance from the origin, so we can find out distance from the origin। so distance from the origin क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है ना, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, तो इन द सेम मैनर हम लोग क्या करेंगे? इसको x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 और माइनस ऑफ के, और यहाँ पे फिर से मॉड लगा देंगे, और रूट ओवर क्या आ जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 स्क्वायर एंड कॉफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस 2 स्क्वायर एंड कॉफिशिएंट ऑफ z दैट इज प्लस 2 स्क्वायर। और यहाँ पे ए डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ के ना, मॉड ऑफ के इक्वल्स टू 1 इंटू, तो आई थिंक देखो दिख रहा होगा 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 9, 4 4 8 प्लस 1 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज गोइंग टू बी 3, तो इट मीन्स कि मॉड ऑफ के इक्वल्स टू 3। और अगर मॉड ऑफ के इक्वल्स टू 3, इट मीन्स कि के हैव टू वैल्यूज इधर प्लस 3 और माइनस 3। ठीक है, इधर प्लस 3 और माइनस 3। तो इफ आई पुट के इक्वल्स टू प्लस 3 ना, देख लो किसमें होगा, तो आई थिंक कि ना जो 3 आना चाहिए के प्लेस पे 3, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 ही मैच कर रहा है, बाकी सारे ना कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक कि ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो 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 चलो। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स 2x plus y plus 2z equals to 8 and this। हाँ, तो हम लोग सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में करते हैं ना, वैसा ही, जहाँ जैसे स्ट्रेट लाइन में लाइन बिहेव करता है, इन द सेम मैनर 3D में प्लेन बिहेव करता है। ठीक है, सेम लगभग फार्मूला यूज होता है। ओके, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इट इज सेइंग कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, तो जैसे वहां पे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन में क्या करते थे? पहले x एंड y का कोफिशिएंट सेम करते थे। इन द सेम मैनर विल वर्क हियर, तो फर्स्ट प्लेन इज गोइंग टू बी दैट इज 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल्स टू 8 एंड सेकेंड प्लेन इज दिस, तो बट आई कैन सी कि कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, इट मीन्स कि वी नीड टू मेक श्योर कि कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 2, तो इफ कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 2, मेक दिस राइट साइड, that is minus 5. So I would divide the complete equation by 2. So if I divide complete equation by 2, it is going to be 2x plus 2y by 2 is going to be y, and similarly 4z upon 2 is twice of z equals to minus 5 by 2. ठीक है, चलो अब दो पैरेलल प्लेन्स आ गया, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ना, डिस्टेंस d, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला इट इज गोइंग टू बी d1 माइनस d2, तो इट इज गोइंग टू बी 8 माइनस 5 बाई 2। ठीक है, वहां पे भी करते थे c1 माइनस c2 मॉड डिवाइड बाय रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज x स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर। तो आई थिंक कि इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज गोइंग टू बी 8 प्लस 5 बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, अगेन 4 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 9 and square root of 9 is 3, तो I think it is going to be 8 to the 16 plus 5, तो 16 plus 5 क्या हो जाएगा? 21 by 2 and divide by 3, तो I think कि 3 7 जा, तो आंसर is going to be 7 by 2, आंसर is going to be
7/2. So which option have 7/2? तो again option number 3 and third option is correct even in this case. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. If everything is clear. If the line x minus 3 divided by 2 equals to y plus 2 divided by minus 1, z plus 4 equals to 3 lie in the plane x then l square plus m square. चलो भाई देख लेते हैं यार. आई थिंक कि ऐसा एक क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं जहाँ पे ना जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था जहाँ पे लाइन क्या था प्लेन पे लाई कर रहा है. तो सिमिलरली वी हैव सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इवन इन दिस सिनेरियो. ठीक है चलो अभी क्या बोलता है कि ना एक कोई लाइन है तो इसका डी आर कितना होगा बेटा. इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज गोइंग टू बी 2, -1, 3 2, -1, 3. इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा डी आर. ठीक है अब ये बोल रहा है इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज एल एक्स प्लस एम वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0. तो अगेन इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन देन नॉर्मल ऑफ द प्लेन नॉर्मल आई विल से कि n वेक्टर n ऑफ द प्लेन इज गोइंग टू बी l m -1. और फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन they are perpendicular and if they are perpendicular then their dot product is going to be 0. So their dot product is going to be 2 into l, that is twice of l, minus m and -3 equals to 0. तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 2l minus m equals to 3. So we get one equation. एक इक्वेशन मिल गया. सर सेकंड इक्वेशन कैसे मिलेगा? सेकंड इक्वेशन ऐसे मिलेगा कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये जो लाइन पे ना, कौन सा पॉइंट होगा सर? जहां से पाथ चल रही है ना, फ्रॉम वेयर द लाइन ओरिजिनेटिंग, सो दैट पॉइंट इज 3, -2, -4. तो ये जो पॉइंट होगा जहां से लाइन ओरिजिनेट हो रहा है, ये भी तो प्लेन पे होगा क्योंकि कंप्लीट लाइन प्लेन पे है. तो ये पॉइंट भी क्या होगा? प्लेन पे. एंड इफ दिस पॉइंट इज ऑन द प्लेन, सो इट मींस कि दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ये पॉइंट क्या करेगा? इक्वेशन ऑफ द प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. तो हम लोग सेटिस्फाई करा देते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन को. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3l -2m और -+4 इक्वल्स टू 0. चलो अब देखो यार, एल एंड एम में दो इक्वेशन बन गई ना, दो लीनियर इक्वेशन बन गई. अब इसको तो सॉल्व कर लोगे. आई थिंक, आई बिलीव यू कैन डू इट ना, नॉट थिंक ना, मुझे भरोसा है यार तुम लोग कर लोगे. ठीक है तो सॉल्व कर लेना और वैल्यू आ जाएगी l² प्लस m² की. ठीक है क्वेश्चन नंबर 8. द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -1, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन एंड द लाइन आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट. चलो यार इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग. पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आउट करेंगे. कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सर इफ टू प्लेन्स, if the plane passing through the point and parallel to the line. चलो पहले काम करते हैं, पहले प्लेन ड्रॉ करते हैं. सपोज दिस इज द प्लेन. वैसे हमारा बोर्ड भी प्लेन ही है, बट ठीक है हमने एज्यूम किया कि दिस इज द प्लेन एंड वी हैव टू लाइंस ना, दो लाइंस गिवन है और आई थिंक कि दोनों का डी आर अलग है. तो सपोज दीज टू लाइन्स आर गिवन समथिंग लाइक दिस एंड वी आल्सो हैव गॉट अ पॉइंट. द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, एक कोई पॉइंट दिया है दैट इज 4, -1, 2. तो हम लोग अभी इसकी बात नहीं करते. तो सपोज फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन ना ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, वो पॉइंट दिया होगा दैट इज -2, 2, -1 और इसका डी आर जो है ना, डायरेक्शन रेशियो, दैट इज 3, -1, 2. ठीक है ए आ गया. और इन द सेम मैनर कि द सेकेंड लाइन वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दैट इज 2, 3, 4 एंड डी आर ऑफ दिस लाइन,
डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड लाइन, लेट कॉल दिस L2 एंड दिस इज L1, दैट इज गोइंग टू बी 1, 2, 3, ठीक है, एंड आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। तो यार अब तो मतलब मुझे लग रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जो नॉर्मल होगा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये dr1 ले लिया, इसको d1 बोल दिया, एंड दिस इज d2। तो जो नॉर्मल वेक्टर आएगा n, दैट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ d1 क्रॉस d2, और d1 क्रॉस d2 करके नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, और नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करके उसके बाद क्या करेंगे, जो भी आएगा हम लोग इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिख लेंगे, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू के, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी क्या हो जाएगा, दैट इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है। और उसके बाद इस पॉइंट को पुट कर देना, के की वैल्यू आ जाएगी, तो आई थिंक इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगा, और उसके बाद इसमें से चेक कर लेंगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आई थिंक कि इजिली आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना ना, क्रॉस प्रोडक्ट भी मैं बता देता हूँ कैसे होता है। आई जे के ऐसे राइट डाउन करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, पहला वेक्टर दैट इज 3, -1, 2 एंड सेकेंड वेक्टर इज 1, 2, 3। अब इन दोनों को यार इसको सॉल्व कर लेना ना, बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है, अगर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आता हो, और मुझे लगता है सबको सीख ही जाते हैं ना, अभी तो यार मेंस का एग्जाम दोगे तो अगर ये चीज़ें नहीं आ रही तो फिर तो क्या ही बात, मतलब क्या ही बातें करना, ठीक है। चलो, तो आई थिंक कि ये हो जाएगा, और उससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। The direction ratio of the normal to the plane through the point and making an angle pi by 4 with the plane. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि the direction ratio of the normal to the plane through the point, the direction ratio of the normal to the plane through the point, ना इस पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन, and making an angle pi by 4 with the plane, no, with the plane r। तो मुझे लग रहा है कि डायरेक्शन रेशियो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, dr फाइंड आउट करना है ना, dr फाइंड आउट करना है, तो हम लोग प्लेन की इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू के, ठीक है। हम लोग ए बी सी फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। तो अगर इससे पास कर रहा है तो यार पहले बात तो ना इन दोनों को सेटिस्फाई करो, तो इफ इट इज पासिंग थ्रू 0, -1, 0, तो पुट करो, ए 0 हो गया, ए क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ बी और इक्वल्स टू के, ना के की वैल्यू माइनस बी आ गई, ठीक है। चलो, और दूसरा इससे भी पास करेगा, तो अगर 0, 0, 1 से पास कर रहा है तो ये सारे 0 हो गए और ए 1 हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई, के, ना दो रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोगों को पता है, दैट इज a, b, c। अब इससे कितना एंगल बना रहा है, इससे एंगल बन रहा है ना, इसका dr कितना हो गया, इस लाइन का dr कितना हो गया, x वाला तो 0 है, तो 0, 1, -1 ना, तो जो एंगल बन रहा है n1 और इसको n2 ले लो, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, 0, 1, -1, तो a क्या आ जाएगा, हाँ, तो दोनों का मॉड, इसका मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2, और इसका लोगे तो √a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और cos 45 दैट इज 1/√2, तो a कैंसिल हो गया। तो और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a 0 हो जाएगा, और a क्या आ जाएगा, b माइनस सी, दैट इज गोइंग टू बी √a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और अभी अभी देखा है, कुछ सीखा है कि b एंड c दोनों की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के, और c की वैल्यू कितनी है, के। तो यार b एंड c में इक्वेशन बन गया, तो ऐसे a की वैल्यू भी आ जाएगी, और उसके बाद क्या है, a की वैल्यू k के टर्म में आ गए, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b² प्लस c² और माइनस, अच्छा b एंड c यार मुझे दिख रहा है कि चलो ठीक है, बट फिर भी ना, -2 bc इक्वल्स टू a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आई थिंक कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2bc। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस के अंश c की वैल्यू k है, तो आई थिंक कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर। तो a की दो वैल्यू आएगी, एक तो k√2 और दूसरा -k√2। ठीक है, तो देख लो, ठीक है, ए की दो वैल्यू आ गई और ऐसे b का वैल्यू गिवन है और c का वैल्यू गिवन है। तो अगर हम लोग k√2 करेंगे तो a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k√2x और b की वैल्यू क्या आएगी, -ky एंड प्लस kz इक्वल्स टू k। तो आई थिंक कि ए इक्वेशन क्या आ जाएगी, √x -y प्लस z इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से ना डायरेक्शन रेशियो, तो मुझे लग रहा है √2 ना, एक तो ए आ सकता है और दूसरा क्या आ सकता है, ये सारे सही है, देख लेना। ए की वैल्यू k√2, ठीक है, ए की वैल्यू k√2, एक मिनट। अच्छा, अगर b माइनस सी की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, b माइनस सी दैट इज गोइंग टू -2k और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आई थिंक कि ऑप्शन में यार कुछ गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है, 1, और y की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, -k है। और अगर इसको हम लोगों ने माइनस रखा तो एक क्या आ जाएगा, -√2 एंड -1 आएगा और 1 आएगा। तो हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो √2 1, -1, √2 1, -1। तो आई थिंक यार इसमें मतलब इसमें ये √2 होना चाहिए, ठीक है, बाकी देख लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ना, प्रोसेस तो सेम रहेगा। इफ देयर माइट बी एन कैलकुलेशन मिस्टेक तो देख लेना ना, यू वुड आल्सो गेट अ चांस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इफ द पॉइंट 2, α, β लाइज ऑन द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4, 2 एंड 7, 0, 6 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मुझे लग रहा है अब ना ये भी एक इजी सा क्वेश्चन ही है, बस ना 3D एंड वेक्टर में बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए और दिमाग काम करना चाहिए, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन सिंपली हो जाते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, लाइज ऑन द प्लेन, लाइज ऑन द प्लेन ना, एक कोई पॉइंट है दैट इज 2, α, β लाइज ऑन द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ना, एक किस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज 3, 4, 2 एंड अनदर पॉइंट दैट इज 7, 0, 6 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इस प्लेन के पैरेलल होगा और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2, -5, 0, ठीक है। तो एक वेक्टर ए फाइंड आउट कर लेंगे और उससे क्या कर लेंगे, फिर से हम लोग नॉर्मल फाइंड आउट कर लेंगे इस प्लेन का, और नॉर्मल फाइंड आउट करने के बाद क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग राइट डाउन कर देंगे और इक्वेशन ऑफ प्लेन राइट डाउन करने के बाद किसी पॉइंट को सेटिस्फाई कर लेना और उसे के की वैल्यू आ जाएगी ना, सी की वैल्यू के डी जो भी बोल लो, ठीक है। और उसके बाद तो हमें लग रहा है अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो सिंपली ना वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आई थिंक ये हो जाएगा, ठीक है, और नहीं करना है तो बताओ मैं कर दूं, एक मिनट बाद। चलो, तो मैंने क्या बोला अपना, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले इसका वेक्टर फाइंड आउट करो, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 - 3 दैट इज 4, कॉमा 0 - 4 -4 एंड 6 - 2 आई थिंक 4। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को बस डायरेक्शन चाहिए, तो हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 - 1 एंड 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज नॉर्मल वेक्टर आईजे के। तो दिस इज टू 1 - 1 1 एंड दिस दैट इज गिवन दैट इज 2, -5, 0, ठीक है। कैलकुलेट करो, तो आई कैप जब फाइंड आउट करेंगे तो एक क्या हो जाएगा,
-1, 0 एंड माइनस ऑफ -5, तो ये आई थिंक कि 5 आई है ना, 5 आई, मैं कॉमा लिख के लिखता हूँ, ठीक है। हम लोग 3D में बात करें तो कोई दिक्कत नहीं वैसे भी। और ऐसे जे वाला कंपोनेंट बात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -2, तो आई थिंक कि -2 और जे ऑलरेडी माइनस होता है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे के की बात करें तो ए क्या आ जाएगा, -5 एंड +2, -5 + 2 इज -3। चलो, तो ए क्या हो गया, एन नॉर्मल वेक्टर आ गया, ठीक है, एन वेक्टर एन। तो आई थिंक कि जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आएगा दैट इज गोइंग टू बी 5 of x +2 of y एंड -3z इक्वल्स टू के। अब इसके लिए देखो, अब क्या बोल रहा है कि 3, 4, 2 इसी पॉइंट इसी प्लेन पे, और अगर ए इसी प्लेन पे है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या हो गया, 5 × 3 +2 × 4 -3 इंटू जेड मीन्स 2, दैट इज के। तो आई थिंक की वैल्यू ऑफ के इज गोइंग टू बी 15 + 8 एंड -6, तो मुझे लग रहा है 17 आ जाएगा, ठीक है, 17 आ जाएगा, के इक्वल्स टू 17, इक्वल्स टू 17। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या राइट डाउन कर सकते हैं, हमको पता है कि अल्फा ना 2, अल्फा, बीटा इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इट विल सेटिस्फाई दिस पॉइंट, तो इट इज गोइंग टू बी 5 × 2 +2 एंड y के प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा पुट करेंगे -3 और z के प्लेस पे बीटा इक्वल्स टू 17। तो मुझे दिख गया कि अल्फा -3 बीटा इज गोइंग टू बी 17 - 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो आई थिंक कि 7, ऑप्शन नंबर 4 इज 7, तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बेसिकली वेक्टर्स एंड 3D में क्या करना है, जो पॉइंट्स दिए हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके एक प्लान बना लिया करो। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से प्लान बन जाता है कि हम लोगों को क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। सारे डेटा दे दिए, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए और ए वेक्टर दिया था, तो हम लोगों ने इस 2 डिफरेंस फाइंड आउट करके वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ द जो नॉर्मल ऑफ द प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों के 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, और परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद फिर क्या है, एक कोई पॉइंट ले लो और परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और इक्वेशन ऑफ द प्लेन के बाद क्या करना है, एक पॉइंट उस प्लेन पे लाई कर रहा है तो दिस विल सेटिस्फाई दैट प्लेन, और उससे हमारा सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कैसे क्या है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इससे परपेंडिकुलर डालना है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 2, -1, 4 ऑन दिस लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। और जिसका डी आर मुझे लग रहा है, डी आर तो दैट इज क्या है, 10, -7, 1, अभी तक तो पता हो गया होगा, ये नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है और ऊपर वाला कोई पॉइंट देता है, दैट इज -3, 2, 0, कोई पॉइंट हो गया, ठीक। चलो, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग ए वाला वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लोग एक काम करें, ए वाला वेक्टर फाइंड आउट करें और उसके बाद देखोगे अगर ए एंगल थीटा है ना, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, एंगल बिटवीन दिस डी वेक्टर, हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोल दे सकते हैं ना, डी वेक्टर, और ए, इस पॉइंट को ए ले लो और इसको बी ले लो, तो दिस इज ए बी वेक्टर। तो अगर ए थीटा है तो आई थिंक ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो आई थिंक कि क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर इजी नहीं लग रहा होगा तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं सर, एक कोई वेरिएबल पॉइंट ना, वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन, तो वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन इज गोइंग टू बी क्या हो जाएगा, 10 लेमडा -3 ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट 10 लेमडा -3 आएगा, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -11 लेमडा +2, और ऐसे जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेमडा, ठीक है। अब फिर से इसका इससे ना ए वाला वेक्टर फाइंड आउट कर लो, ए वाला वेक्टर -2 करके, तो दिस इज गोइंग टू बी 10 लेमडा -3 -2 मीन्स -5, और ऐसे -7 लेमडा एंड +1, और ऐसे क्या आ जाएगा, लेमडा -4, ठीक है, एज वाला वेक्टर हो गया।
अब देखो ए और ए दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और ए और ए ना, डी वेक्टर और ए वाला वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और डॉट प्रोडक्ट करते ही क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, और लेमडा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेना। नहीं, इसका आंसर मुझे लग रहा है ना 3 and 4 के बीच में आएगा, देख लेना आता है नहीं आता। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, सो इफ अ लाइन इफ अ पॉइंट इफ अ पॉइंट आर which is given as 4 y z lies on the line segment joining the points, then the distance of point r from the origin. Okay, चलो देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि वह पॉइंट P दैट इज 2, -3, 4, और ए क्या बोल रहा है 8, 0, 10। अब ए क्या बोल रहा है, कोई पॉइंट ना, पॉइंट आर है, ठीक है, दैट इज 4, y, z लाइज ऑन दिस लाइन सेगमेंट। अगर इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है तो हम लोग इसको देखो, एक तो ठीक है लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो, पॉइंट को सेटिस्फाई करो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे सर, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसको एज्यूम कर लो कि दिस पॉइंट आर डिवाइड दिस देम इनटू k/1। उससे सर फायदा क्या होगा, उससे देख एक्स कोऑर्डिनेट दिया है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 इज गोइंग टू इक्वल्स टू k इंटू 8 दैट इज 8k, और प्लस 1 इंटू 2 दैट इज 2 डिवाइड बाई k+1। देखो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, और जैसे k की वैल्यू आ गई तो यार y एंड z की वैल्यू फिर वो इंटरसेक्शन फार्मूला से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो एक क्या हो जाएगा 4k + 4 इक्वल्स टू 8k + 2, तो 4k इस साइड ले आए तो 4k इज गोइंग टू इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू 1/2 आ गया, k की वैल्यू 1/2। तो बेसिकली दे डिवाइड इट इन द रेशियो, एक किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/2 में। और अगर 1/2 में डिवाइड कर रहा है ना, तो फिर तो आई थिंक कि y की वैल्यू आ ही गई। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 एंड 2 इंटू -3 दैट इज -6, और डिवाइड बाई 3, तो आई थिंक कि y क्या हो जाएगा -2। और ऐसे सेम हम लोग z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 1 इंटू 10 10, और प्लस 2 इंटू 4 8 डिवाइड बाई 3, तो आई थिंक 6 आ जाएगा ना। तो एक क्या हो जाएगा, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4, और y क्या हो गया -2, और z कितना हो गया 6। चलो अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के लिए सिंपल हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो देखो सब में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर ले लो, ठीक है, और ये 2 स्क्वायर 4 हो गया, और +1 और +9, तो देखो 4 + 1 5 और 9 14, तो आई थिंक कि 2√14 आ जाएगा। आंसर इज 2√14, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट b, बीटा, 0, बीटा है, वेयर बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 to the line x/1, okay, if the length of the perpendicular from the point। अब फिर से देखो सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, वहां पे क्या बोला था, डिस्टेंस पूछा था, लेंथ पूछा था ना इसके जस्ट 11th या 12th क्वेश्चन में। अब यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, और इक्वल्स टू √3/2 कर देना, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आई थिंक कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, ओके चलो ठीक है देखते हैं। तो आई थिंक कि 2 लाइन्स आर गिवन and we need to find out a shortest distance between them, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सपोज करो कि यहाँ पे कहीं पे आया, ठीक है, हम लोग ना एक्चुअली ऐसे जा नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे तो ना दिख रहा है, ऐसे कहीं ऐसा है कहीं पे, ठीक है, प्लेन 3D में हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे 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 जा रहा है ना, तभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज गोइंग टू बी 3, 8, 3 हो गया, ठीक है, जिससे पास कर रहा है, तो इसका dr कितना हो जाएगा, d1,
हम लोग बात करते हैं दैट इज गोइंग टू बी 3 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1। और ऐसे सेकेंड लाइन की बात करोगे तो एक इससे पास हो रहा है -3 कॉमा -7 कॉमा 6। और इसके dr डायरेक्शन रेशियो d2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी -3 कॉमा 2 कॉमा 2। ठीक, हम लोग इस काम करते इसको पॉइंट ए बोल देते हैं और इसको पॉइंट बी। ठीक है, तो अब देखना अगर ए बी को ज्वाइन किया तो कुछ ऐसा मिलेगा। सॉरी, इफ आई ज्वाइन द लाइन ए बी तो हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, और हमको पता क्या करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए वाला डिस्टेंस। और ए कैसे पता है ए वाला जो डिस्टेंस होगा क्या होगा ना दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इट शुड बी परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन। सो इफ d1 एंड d2 हैज बीन गिवन तो आई थिंक कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो विच आर परपेंडिकुलर दैट इज गोइंग टू बी d1 क्रॉस d2 ना d1 क्रॉस d2। और फिर से d1 क्रॉस d2 फाइंड आउट कर लेंगे। सर उसके बाद क्या करें, देखो अब d1 क्रॉस d2 आ गया। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा इसके पैरेलल। ठीक है, ए क्या हो गया d1 क्रॉस d2। अब देखो ए बी फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया थीटा। तो अब मुझे दिख रहा है कि ए क्या हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। और ए बी कॉस थीटा कैसे आएगा, बहुत ही सिंपल है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना। ए बी डॉट d1 क्रॉस d2 के बाद सॉरी क्रॉस से जो वेक्टर आया ठीक है उसका डॉट कर देंगे डॉट प्रोडक्ट। और ए बी कॉस थीटा होगा तो एक काम करो इसको मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो ऐसे लॉजिकली भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, आई थिंक यू विल गेट आंसर इजिली। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ a comma b comma c is the image of the point in the line then a plus b plus c। तो यार ये क्या बोल रहा है कि इफ a comma b comma c is the image of the point, suppose we have point 1 comma 2 comma -3। तो a क्या है इसका इमेज, इसका इमेज लिया। तो इसका इमेज हम लोगों ने क्या लिया दैट इज a comma b comma c। ठीक है, चलो तो यार एक तो देखो ये जो लाइन है ना इसका डी आर कितना हो जाएगा, इसका डी आर हो जाएगा 2 कामा -2 कामा 1 -1। और एक इस पॉइंट से पास करेगा दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी -1 कामा 3 कामा 0। तो एक तो हम लोग एक कर सकते हैं कि देखो ये जो पॉइंट होगा ना एक क्या होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट। अब सर ए पॉइंट कैसे फाइंड आउट करें कि दिस दिस स्ट्रेट लाइन दिस परपेंडिकुलर लाइन वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग द लाइन। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम लोगों ने बहुत ही सिंपल ना हम लोग क्या करते हैं इसको क्या कर लें ना इस पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू -1 + 2 लैम्डा ना इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑन द वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन ना पॉइंट। और ऐसे इसमें लैम्डा से मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करते हैं ना तो 3 एक क्या हो जाएगा 3 - 2 लैम्डा वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू -लैम्डा। ठीक, अब इससे सर क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये हो गया कि ये जो मिड पॉइंट आ गया ये डायरेक्शन रेशियो -a कर देना और डॉट प्रोडक्ट करके क्योंकि परपेंडिकुलर है तो अगेन बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट ना वो 0 हो जाएगा। और 0 होते ही हम लोगों को क्या आ जाएगा लेमडा की वैल्यू आ गई। और लेमडा की वैल्यू आते ही यार ए पॉइंट आ जाएगा। और जैसे ही ए पॉइंट आ गया तो फिर तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट हम लोग ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते ही a + b + c आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 -2 3 फ्रॉम द प्लेन measured parallel to the line whose direction ratios। तो आई थिंक कि दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन ना। इसमें क्या करना है कि एक कोई प्लेन लेना है और कोई पॉइंट दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 -2 3 एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस विच इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन ना। इसका डी आर दिया है दैट इज 2 3 -6। तो हम लोग वापस से पॉइंट गिवन है डी आर गिवन है तो हम लोग इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे
और इसको क्या करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट विच इज ऑन द प्लेन, तो जो उस प्लेन पे है तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या करेगा, इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और वहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, और लेमडा की वैल्यू आते ही क्या हो जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विल गेट आवर आंसर। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, अब फिर से दो स्ट्रेट लाइन है, पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो सब में 3 and 6 यहाँ पे 2 है, सबका एलसीएम लेकर डिवाइड कर दो, तो सबका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 6, और जैसे 6 से डिवाइड करोगे तो ए लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू वाई माइनस टू डिवाइड बाय वन इक्वल्स टू जेड माइनस वन डिवाइड बाय थ्री। तो एक लाइन ये हो गया। सेकंड लाइन कैसे होगा, इसका एलसीएम आई थिंक कि 4 आएगा, तो 4 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, x माइनस टू बाई वन इक्वल्स टू वाई माइनस लेमडा डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, तो फिर से अभी हम लोगों ने ना दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट किया था ना ऐसे करके, तो जो फॉर्मूला यूज किया था सेम फार्मूला विल यूज, और डिस्टेंस विच इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 1/√38। ओके, और डिस्टेंस गिवन है तो हम लोग इजिली लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 18, the equation of the plane which contains the y-axis and passes through the point, the equation of the plane which contains the y-axis and passes through the point। तो अगर y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस का dr क्या होता है, x 0 हो जाएगा और y आएगा ना सपोज के, और z भी 0 होगा। ठीक है, तो ए वेरिएबल पॉइंट ना प्लेन की इक्वेशन हम लोगों ने एज्यूम किया, इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर पॉइंट ऐसे दिया है तो दैट इज गोइंग टू बी ए एक्स माइनस वन प्लस बी वाई माइनस टू प्लस सी जेड माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब मुझे दिख रहा है कि इस पे कर रहा है तो यार x इक्वल्स टू 0 ना, और यहाँ से देखो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेन द डी आर भी दिया ना 0, और इसको 0 रख देंगे, तो यहाँ से देखो एक बार 0 रखने पे b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ के, ओके, y 0 होगा, तो उसको ओ कर लेना। व्हाट हैपेंड, एक मिनट, अरे यार हम लोग डी आर ले रहे हैं ना, तो अगर के क्यों लेते हैं, इसको 1 कर लो ना, के से डिवाइड कर दिया, क्योंकि वेक्टर्स हम लोग डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो एक काम करो इसको 1 कर दो। ठीक है, तो अगर ये 1 हो गया तो यहाँ से यार देखो ए 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, और ये 1 हो गया तो y माइनस टू इज गोइंग टू बी 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी यहाँ से b ना ए 0 हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0, तो b इक्वल्स टू 1 आ गया ना, पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा कि a डायरेक्शन रेशियो तो यहाँ पे दिख रहा है ना, a इक्वल्स टू 0 हो गया एंड c इक्वल्स टू, एक तो ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, और दूसरा मुझे पता है कि इट विल पास थ्रू इफ ना वाई एक्सिस पे है, तो ए पास किससे करेगा, x इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 0 होगा, कि बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, वाई z इक्वल्स टू 0, तो आई थिंक ए क्या हो जाएगा माइनस ए, और ए क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 0 करेगा तो -3c, और b यहाँ पे 0 कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3c, a की वैल्यू 3c आ गया। ठीक है, ये सारे 0 होंगे तो b भी 0 हो गया। ठीक है, चलो, तो a इक्वल्स टू 3c आ गया ना, -3c, तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया तो -3c मीन्स -3c x माइनस वन, और ये 0 हो गया तो प्लस c मीन्स c इंटू जेड माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, तो कैंसिल किया तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी -3x प्लस 3 प्लस जेड माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, और ना ऐसे क्या हो जाएगा, सबको उस साइड लेके गए तो 3x
माइनस जेड इक्वल्स टू 0, 3x माइनस जेड इक्वल्स टू 0, ये कौन सा पॉइंट है? आई थिंक ये ऑप्शन 3। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 3, 5 विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, if the mirror image of the point 1, 3, 5 with respect to the plane is alpha, beta, gamma, then तो फिर से मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है। अब क्या करना है? प्लेन के अलोंग करना है। तो एक कोई पॉइंट हो गया, दैट इज 1, 3, 5। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इट्स मिरर इमेज अबाउट द ठीक है, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। और द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 4x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल्स टू 8। तो फिर से देखो, मिरर इमेज जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना, मैंने बोला था लाइन इन द स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन इन द 3D, दे बिहेव इन द सेम मैनर। तो अगर सेम मैनर में बिहेव करता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज गोइंग टू बी, वहाँ वाला फॉर्मूला यूज कर लें। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था सर? एक्स माइनस अल्फा ना, एक्स माइनस ए वाला जो पॉइंट है दैट इज गिवन, दैट इज एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स कोफिशिएंट ऑफ द लाइन, इन दिस केस एक्स कोफिशिएंट ऑफ द प्लेन दैट इज 4। सिमिलरली y माइनस 3 divided by the y coefficient that is minus 5, and similarly z minus 5 divided by z coefficient that is 2 equals to minus 2। अगर हम लोग इमेज की बात करें, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 एंड माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ z इज 5 और माइनस 8 और इट होल डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, आई थिंक कि आंसर आ जाएगा। एक्स वाई जेड ना इमेज, इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी अल्फा, बीटा एंड गामा। और उसके बाद हम लोग सीधा सम कर लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, माइनस 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इससे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा इट इज गोइंग टू बी ऑन द प्लेन, और इसका भी नॉर्मल वेक्टर लाई ऑन द प्लेन। तो जो प्लेन होगा उसका नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा? नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन इज गोइंग टू बी n1 क्रॉस n2, और हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और पॉइंट तो गिवन ही है, और पॉइंट गिवन है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ द प्लेन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलो, लेट अ प्लेन P पास थ्रू द पॉइंट and contain the line if the distance of the plane P from the origin is d। तो मुझे लग रहा है फिर से एक इजी सा क्वेश्चन है, कोई प्लेन है ना, ऐसा क्वेश्चन किया जिसमें लाइन दिया कंटेंट और एक पॉइंट भी दिया है। तो यार ये क्वेश्चन ना हम लोगों ने सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका डी आर ले लेंगे, ए पॉइंट गिवन है तो ए वाला वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हम लोगों को क्या मिल जाएगा? विल गेट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, और एक पॉइंट, दो पॉइंट गिवन है और कोई एक पॉइंट लेके हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ प्लेन आते ही क्या करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकाल लेंगे। चलो ठीक। इफ द लाइन एंड द लाइंस आर कोप्लेनर, फिर से सेम, अगर एक कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, तो ना पहले तो इसका कोऑर्डिनेट कहाँ से पास कर रहा है वो करेंगे, इसका d1 ले लिया और इसका d2, तो d1 डॉट d2 ना, उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ एक चीज़ तो हम लोग बोल सकते हैं कि ना इन दोनों के बीच का वेक्टर फाइंड आउट करो, और इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक क्या हो जाएगा? 2, 3 ये पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दैट इज -1, -2, -3। तो हम लोग पहले d1 क्रॉस d2 करेंगे, d1 क्रॉस d2, तो बाय यूजिंग d1 क्रॉस d2 विल फाइंड आउट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, और ए वाला वेक्टर फाइंड आउट कर लेना, फिर उससे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 0 आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0, तो बाय यूजिंग दैट विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर,
ना, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो उनका डिटर्मिनेंट देखो 0 होता था, अगर याद हो तो। इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी 0। तो हम लोग यहाँ पे d1 पुट करेंगे, दैट इज 1 2 3, d2 दैट इज 3 2 1, और a हो जाएगा k माइनस माइनस 1 मीन्स k प्लस 1, और 2 माइनस माइनस 2 मीन्स 4, एंड 3 माइनस माइनस 3 मीन्स 6। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी हम लोग k की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो आई थिंक यार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन भी कर लिया है, ठीक है। द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑन द, ओके, एक कोई दूसरा लाइन दिया, ठीक है। तो अगर इन दोनों का लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट कर लेना ना, ए कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका ए बी कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, तो आई थिंक कि हम लोग इजिली प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू, फिर से सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन दिया। तो आई थिंक कि दिस वाज ऑल अबाउट 3D। तो क्वेश्चंस इजी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है, बट समटाइम्स थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, और इजी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है और क्लियर पिक्चर है कि क्या करना है, और वो कैसे आएगा सर, वो आएगा प्रैक्टिस करने से, ठीक है। वेक्टर एंड 3D में सबसे सिंपल मुझे ये लगता है कि इसमें प्लान बनाया जाता है, ठीक है। देख के तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, आइडियाज आ जाएंगे, नहीं ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, फाइनल स्टेप तक एक प्लान रहेगा दिमाग में, ठीक है। और उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है, दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है 3D में। और 3D वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। बाकी में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो और सारे चैप्टर ले लो ना, वहाँ पे क्वेश्चन रीड करने के बाद ऐसा लगता है हो जाएंगे, बट नहीं होता, ठीक है। लेकिन 3D में नहीं, वेक्टर 3D में ऐसा नहीं होता। अगर क्वेश्चन लग रहा है तो हो जाएगा, क्लियर कट दिख रहा है कैसे करना है, तो स्टेप्स आ जाते हैं आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।